Start students. Today we are going to discuss an important topic, data handling. डेटा हैंडलिंग में बेटा बहुत सारे कंसेप्ट है जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, जस्ट उनके बारे में हमें थोड़ी सी पता करना है। तो सबसे पहले आता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? जैसे हमने कांस्टेंट पढ़े थे, तो कांस्टेंट की अलग अलग टाइप, ठीक है। तो जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज v1 इज अ वेरिएबल, इट कंटेन वैल्यू 5, v2 is a variable which contain value 50.552. So there is a difference between the value contained by v1 and v2 because v1 contain an integer type value, okay, and v2 contain a floating point value. So what kind of value is stored by a variable? This is known as the type of that variable. Okay, वेरिएबल कौन सी वैल्यू को स्टोर करता है उसके ऊपर ही क्या है, उसकी टाइप डिसाइड की जाती है। तो पाइथन में देयर आर various types of built-in or core data types. Core data type means which the data type which are already exist in the Python library. So number, string, list, tuple, and dictionary. These are some data types that are already exist in Python. So most of things we already discussed about this. So let's come to the chart. Just a minute. Let me open the chart. So this is the old version of book. So chart is not given. Let me try. This is the chart. Okay. So we have these are the core data type: numbers, none, sequences, mapping, and there is one more data type that is not mentioned in these sets. Okay. So these are the core data type which are available in Python. Numbers, in numbers we have integer like 1, 2, 3, 4, done, and floating point, points वाली values. Okay, complex number a plus iota b. Okay, कोई भी नंबर imaginary number और real number के combination से बना हुआ. Now in integer the boolean is fell under the integer category. Why? Because integer have two values. The constant integer has two value, true and false. True represented by the y 1 and false represented by 0. That is why this is fell under the category of integer. Internally it is represented by 0 and 1. Okay, so after that none means whenever we want to declare a variable without storing any value, this is at that time none data type helps us. For example, a equal 5. If I want to declare a variable something like b and I don't want to store any value, that time we assign this with none. Okay, means blank variable. Clear? Okay, after that sequences क्या होते हैं? Sequences means in which the data is stored one after another. The element of that data type store one after another, just like the string, tuple, and list. For example, there is a string s1 and it store the content like Hemant. Okay, uh, Hemant, and how it internally store h e m a n and t, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6. Okay, so this is a kind of sequence in which every element of this data type stored one after another in a continuous memory location, एक के बाद एक है. Clear? That is why these are known as the sequence. Or we can say whenever a value is stored by indexing, this is called the sequence. Okay, मैपिंग, मैपिंग हमने अभी पढ़ी नहीं है. जब हम +2 में मैपिंग को पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको. ठीक है, डिक्शनरी. ओके, so these are the type of data type. Okay, next we will discuss about the mutability and immutability of concept. There are certain data types that are mutable and certain data types that are immutable. What is mean by mutable and immutable? Whenever a variable change its value in place, that is called the mutable, and
these are the immutable values: integer, float point numbers, boolean, string, and tuples. Why these are immutable? Immutable की definition देखिए. Immutable types are those types that can never change their value in place. Okay, it means, what is mean by this? In place का मतलब यहाँ बहुत जबरदस्त है. तो देखिए, अगर मैंने कोई वैल्यू p है जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर किया हुआ है, how it internally store p5 and the memory location assigned to this like this. Okay, after that immediately I assign the value of p to q. The same memory location is pointed by the q also, and r equal 5, this is same pointed by r. Okay, so after that, whenever after some statements I assigned value 10 to p, then it will change its memory location. Now the memory location 2 1 2 3 1, and it may be, these are imaginary values, 1 2 3 5. It may be possible that the p, whenever it get the value 10, store on different location. Okay, so I will explain you with the help of interpreter. So let me redirect you on my location computer screen. Just a minute. Okay, suppose we have a variable integer. Okay, integer is a variable, and now I'll check b. There is a b variable which contain the value a. B is a variable which contain the value a. Okay, so, and there is a c variable 2 plus 3. Now if I print a comma b comma c, then it will generate same value. Okay, now with the help of id function, I will check the memory location of these variables. This is the memory location 1673775088. At this location, variable a is stored. And what about the b? B is also stored at the same location. And what about c? C also same. So whenever I change the value of a, now I change the value of a from 5 to 90. So again, I will check the memory location of a. The memory location is changed. Just check. Whenever whenever a contain 5, then memory location is this. And whenever a contain 10, the memory location is this. It means whenever we assign some value or change the value of the variable and its corresponding memory address also change, at that time, such types of data type are known as immutable data type. Immutable मतलब कि हम इनको change नहीं कर सकते. In place. In place का मतलब clear हुआ? Clear? इसी तरीके से अगर मैं b में भी चेंज करता हूँ, देखिए b में मैं क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ. एंड id ऑफ b, नाउ देखिए चेक कीजिए id क्या थी पहले और अब क्या है b की. बिकॉज द मेमोरी लोकेशन आर गिवन टू द वैल्यूज, जस्ट लाइक दिस इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ 4. क्लियर? id ऑफ 4, this is the id of 4 beta, and it may be vary interpreter to interpreter, but whenever you run a session, at that time every time you get the same memory location for 4, whether you store it in variable or you can directly check the memory location for 4. Clear? So this, that is why this is called the immutable. But what about the list? List is mutable. L1 is a list and it stores some values like this. And if I check the id of L1, okay, this is the id of L1. Okay, and if I change something in L1, suppose I change in L1 4, nahin, there is L1 3 equal this. Now I check the id of L1, id of L1. So value is not changed, value is changed, but memory address is not changed. That is why this is called, these are the mutable type of data type,
बिकॉज these can help to change the value in place। उसी मेमोरी लोकेशन पे उन्होंने क्या किया, वैल्यू को चेंज किया। कितनी भी वैल्यू आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, उनकी मेमोरी लोकेशन कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो लिस्ट में इनकी मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं होती, लेकिन स्ट्रिंग में भी होती है। इसीलिए स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल टाइप है। फ्लोट क्या है, इम्यूटेबल टाइप है। जिनकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाती है वो किस टाइप के वेरिएबल होते हैं, जिनकी मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाती है वो इम्यूटेबल टाइप के वेरिएबल होते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। सो आगे बढ़ते हैं। Just read out all these paragraphs. These you will come to know how they store internally। देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है। P क्या है, जहाँ पे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एग्जांपल लेके बताता हूँ। जस्ट लाइक C and C++, we have to declare variable like this: int a equal 5 or 20 or you can make it blank। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ये इंटरनली कैसे स्टोर होता है, एक मेरी मेमोरी बनती है और इसको एक एड्रेस दिया जाता है। अगर हम किसी 10-15 स्टेटमेंट्स के बाद ए को क्या कर देते हैं, 50 असाइन करते हैं, तो ये 50 इसी मेमोरी लोकेशन पे होता है। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, उसी एड्रेस पे वैल्यू चेंज होती जाएंगी। क्लियर है? लेकिन पाइथन में क्या है, मेमोरी एड्रेस किसी वेरिएबल को नहीं दिया जाता। मेमोरी एड्रेस कांस्टेंट को दिया जाता है। 5 का मेमोरी एड्रेस, 6 का मेमोरी एड्रेस, 7 का मेमोरी एड्रेस। और जब हम किसी वेरिएबल को असाइन करवाते हैं कोई वैल्यू, जैसे मैंने ए को 5 किया, बी को भी 5 किया, सी को भी 5 किया, तो ये तीनों के तीनों किसको पॉइंट करेंगे, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। इंटरनली ये स्टोर है। क्लियर है बच्चा? तो इसके बाद आई थिंक ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, और जैसे ही हम यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, पी और क्यू और आर की वैल्यू को चेंज कर दिया। पहले 5 कंटेन किया था, अब ये अपनी मेमोरी लोकेशन भी चेंज कर रहे हैं। जैसे ही वैल्यू चेंज हुई तो इनका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल, इसको पढ़ लेना, सारी एग्जाम्पल के साथ इसको दिया हुआ है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट है वेरिएबल इंटरनल्स। सो वेरिएबल इंटरनल्स क्या, इंटरनल्स में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएबल internal। Whenever we declare a variable something like b and we store the value 50, so with a variable there are three terms that are associated with a variable, that is a type, a value and an id। The value is 50 and it may be any constant or any type of value। Okay, so what about the type and id? So ये जो टाइप है वो वैल्यू पे डिपेंड है। किस टाइप की वैल्यू इसने होल्ड की हुई है, उसी की, उस वैल्यू के बेस पे ही उसकी टाइप डिसाइड होती है। अब इसने 50 क्या है, इंटीजर, तो उसकी टाइप क्या है, इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे 50.50 कर दूं तो क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी। अगर मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड में क्लोज कर दूं या डबल इन्वर्टेड में क्लोज कर दूं तो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग। और कौन सा फंक्शन आता है हमें टाइप चेक करने के लिए, टाइप और वेरिएबल का नाम। इसको आप प्रिंट करवाओ या जो मर्जी करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, अब देखिए स्ट्रिंग कंटेन किया हुआ है, क्लास str, ऐसा कुछ आपको रिटर्न करेगा। तो एक बार फिर से मैं इसकी भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले उसके बाद क्या था, उसी के साथ क्या चीज है, आईडी, मतलब कि उसका मेमोरी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो यहीं पे दिया हुआ है बेटा, यहीं पे समझा देता हूँ, सारी एग्जांपल्स दी हुई है। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है। अब ये हाँ, तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसकी टाइप क्या है। यहाँ पे उसके टाइप फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर। अगर हम 4 की टाइप चेक करेंगे तो भी इंटीजर रिटर्न किया, ए की टाइप चेक करेंगे तो भी इंटीजर किया। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, अगर हम सिंपली ए को यूज करेंगे तो क्या करेगा, वैल्यू देगा। आईडी चेक करने के लिए आईडी फंक्शन यूज होता है। ठीक है बच्चा?
तो ये तीन टर्म्स जो है एक वेरिएबल के साथ एसोसिएट होती हैं और इसको पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर जो ऑपरेट करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। सिंपल सा बता देना है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ऑपरेटर्स आर द सिंबल व्हिच आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। क्लियर? तो उसके बाद वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी एंड सेकेंड वन इज बाइनरी। यहाँ पे इसको याद कैसे रखें? यूनरी का मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब वन। तो जो ऑपरेटर जिसपे काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर, ऑपरेंड। द ऑपरेटर विच एक्ट अपॉन इज कॉल्ड ऑपरेंड। जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल है a इक्वल 5 + 6, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर के लिए a इक्वल 5 + 6, तो यहाँ पे प्लस किसके ऊपर काम कर रहा है? इन दोनों के ऊपर। तो ये क्या है? ऑपरेंड है कांस्टेंट है, लेकिन इनको ऑपरेंड ऑपरेटर के साथ काम आता है। अब इक्वल टू किसके काम कर रहा है? इक्वल टू इसके कंप्लीट के और इसके काम कर रहा है, तो इक्वल टू के लिए ये दोनों ऑपरेंड हो गए, a और 5 + 6। क्लियर? तो यहाँ पे जब एक ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट रखता हो, जैसे हमने किसी नंबर को पॉजिटिव बनाना है +5, तो हम प्लस तो नहीं लिखते, +20 प्लस तो नहीं लिखते, हम सीधा लिख देते। अब लेकिन अगर माइनस में करना हो, -2 -20, तो माइनस का सिंबल लगाना पड़ता है। तो ये माइनस क्या है? माइनस एक यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे घटाने वाला नहीं, किसी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बताने के लिए यूज किया जाता है माइनस। ठीक है? वो जो अर्थमेटिक वाला माइनस है वो अलग है, जो दो नंबर को, एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस का सिंबल यूज करते हैं, और उसको कितने ऑपरेंड की जरूरत है? एक ही ऑपरेंड की जरूरत है। प्लस को कितने ऑपरेंड की जरूरत है? एक ही ऑपरेंड की जरूरत है। तो यहाँ पे ये क्या है? यूनरी ऑपरेटर है। कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर है हमारे पास? प्लस, माइनस, नॉट। अब ये नॉट क्या है? नॉट एक हमारे पास ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, जो क्या करता है? अगर रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स बनाता है, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू बनाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर सपोज मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये क्या है? जब 18 से अबव होगी एज तो ट्रू होगा। मैं इसको फॉल्स भी बना सकता हूँ, इफ नॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो अब पहले ये क्या दे रहा था? ये स्टेटमेंट हमें ट्रू दे रही थी। क्लियर? अब ये ट्रू का क्या है? ये सारी ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ट्रू का रिवर्स क्या होता है? फॉल्स। तो ये हमें एक्सप्रेशन क्या देगी? फॉल्स देगी। लेकिन नॉट को यहाँ पे कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ी? एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जस्ट मिनट बेटा। हेलो, बढ़िया जी बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, छुट्टी है सर। नहीं नहीं, छुट्टी है जी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया सर। तो यहाँ पे बेटा क्लियर हुआ ये? किसी ने कुछ पूछना है यहाँ से? एनी डाउट, एनीवन? अगर कोई डाउट नहीं है तो रेज योर हैंड। पारस, गुरविंदर, मनदीप सिंह, सलोनी, विशाल, विशु गोयल, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव नो डू नॉट हैव एनी डाउट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो बाइनरी ऑपरेटर क्या है? बाइनरी ऑपरेटर जिनको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। कौन कौन से बाइनरी ऑपरेंड है यहाँ पे? ऑपरेटर है यहाँ पे एडिशन, अरिथमेटिक के सारे लगभग बाइनरी ही है। कैसे? तो यहाँ पे एडिशन के लिए भी देखिए दो ऑपरेंड की जरूरत है। जैसे हमने 4 और 20 को
ऐड करना है, तो ये 4 और 20 क्या इसके ऑपरेंड है, और प्लस को कितने ऑपरेंड की जरूरत है, 2 की। ठीक है, ऐसे तो नहीं लिखते हम 5 प्लस आगे कुछ लिखा ही नहीं, तो क्या इसका मतलब 5 प्लस 10 ये क्या देगा 15, तो प्लस को कितने ऑपरेंड की जरूरत है 2, तो ये क्या है बाइनरी है, सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी है, मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी है, डिवाइड बाइनरी है, फ्लोर डिवीजन बाइनरी है, मॉडुलस बाइनरी है, एक्सपोनेंट बाइनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर इन चीजों में आपको क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश एंड दिस मॉडुलस, इसमें भी आ जाता है। तो ये क्या है आपको पॉइंट्स में आंसर देगा, ये क्या है आपको राउंड ऑफ करके फ्लोर वैल्यू देगा, नीचे वाली वैल्यू जैसे 2.8 आ गया, तो ऐसे नहीं है आपने राउंड ऑफ करके वो मैथ वाला लगा देना है, राउंड ऑफ नहीं करना, आपने फ्लोर वैल्यू लिखनी है, 2.8 की फ्लोर वैल्यू क्या है 2 है, ना कि 3, आपने राउंड ऑफ नहीं करना उसको, 2 वैल्यू लिखनी है नीचे वाली वैल्यू। और ये क्या देता है रिमाइंडर देता है, तो इनमें क्या आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई और डबल मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है, ये क्या करता है 5 मल्टीप्लाई 2 तो ये 10 देगा, और यहाँ पे अगर 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 होता तो 5 रेज़ टू पावर 2 होता, और ये क्या बनता आपका 25 बनता बच्चा। ठीक है, ये पावर बना देता है, क्लियर। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं, ये भी देख लेना बेटा, सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के रिलेटेड है, इसको देख लेना जरूर। एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है, यहाँ पे भी इसको एक टेबल दिया है, टेबल के थ्रू बताया गया है अभी क्या क्या आंसर आएंगे, उसके कमेंट भी दिए हुए उनको पढ़ लेना। नेगेटिव में भी आंसर दिए हुए हैं, इनको भी एक बार जरूर गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज ऑपरेटर विच असाइन द वैल्यू ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड, जो भी हमारी राइट हैंड साइड पे वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन कर देता है। इधर हमेशा ही वेरिएबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ही एक वेरिएबल होगा, लेकिन इधर क्या कुछ हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और एक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल 5 ये हो गया कांस्टेंट, b इक्वल a ये वेरिएबल असाइनमेंट, c इक्वल a प्लस b तो ये एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर जब हम कंबाइन करते हैं, जैसे मेरे को a में ही a की वैल्यू चाहिए, उसमें हमने कुछ ऐड करना है, तो ये इसको हम शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं a प्लस इक्वल 5, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको ऑगमेंटेड ऑपरेटर भी बोलते हैं, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे बेटा अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे मैंने लिखा a इक्वल a माइनस 20, तो इसको शॉर्ट हैंड करने के लिए आप लिखते हो a माइनस इक्वल 20, लेकिन ये अलग है, देखो अगर माइनस का 20 इसमें स्टोर करना हो तो ये अलग है बेटा, देखो ये क्या है माइनस का 20, ये ऑगमेंटेड ऑपरेटर नहीं है, जस्ट शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, क्लियर। ये हमने माइनस की वैल्यू स्टोर किया, -20 ए में स्टोर किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे ए इक्वल ए माइनस क्या है, ये ऑगमेंटेड ऑपरेटर है, ए इक्वल ए माइनस 20, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एगमेंटेड की, इसको भी देख लेना चार्ट में। नेक्स्ट आता है रिलेशनल। रिलेशनल में हमारे पास कौन कौन से है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये 6 ऑपरेटर हैं जो हमारे पास। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू फॉर कंपैरिजन, जिसका आप यह भी लिख सकते हो कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज करते हैं। एंड ये काम कैसे करते हैं, विच फाइंड द रिलेशनल ऑपरेटर रेफर टू द रिलेशनशिप दैट वैल्यूज, इसको छोड़ो, इतना इतना डीप में नहीं करना। यहाँ पे आपने बोलना है रिलेशनशिप ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज, दो वैल्यू के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं, जैसे कोई कम है ज्यादा है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिटर्न हमेशा क्या करते हैं, देखिए इफ कंपैरिजन इज ट्रू द रिलेशनल एक्सप्रेशन रिजल्ट इनटू बुलियन वैल्यू ट्रू एंड बुलियन वैल्यू फॉल्स इफ कंपैरिजन इज फॉल्स। अगर आपका कंपैरिजन ट्रू होगा तो ये ट्रू रिजल्ट करेगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स। बुलियन में होता है इंटरनली, क्लियर है, इंटरनली ये क्या है बुलियन वैल्यू में रिटर्न करते हैं आपको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये चार्ट, इसको जरूर देख लेना। अब यहाँ पे देखिए जो ये बुलियन ऑपरेटर सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर है, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लिस्ट पे भी लगता है हमारा। अब ये कंपेयर कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। ए से जेड तक इसकी यूनिकोड वैल्यू क्या है, 65, 66, 67 अप टू 90। छोटे ए और छोटी जेड की क्या है
97 से लेके 122 और 0 टू 48 की, सॉरी 0 टू 9 की क्या है 48 से लेके 57, ये इसकी यूनिकोड वैल्यू है बेटा। अब इन्हीं के बेस पे इनकी बाइनरी बनती है और इन्हीं के बेस पे इनकी आउटपुट आती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ गॉड जी गॉड, यहाँ पे नीचे इसको कंपेयर किया गया है और ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट दिया गया है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या रिजल्ट आते हैं। इसने क्या लिखा हुआ है देखिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, हाँ, जी इक्वल इक्वल जे, तो जी की वैल्यू देखिए क्या है गॉड और इसकी वैल्यू क्या है गॉड, तो ये दोनों क्या रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। तो इसके बाद एफ लेस देन एच, एफ की वैल्यू क्या है गॉड और एच की वैल्यू क्या है गॉड, तो इसने क्या रिटर्न किया फॉल्स नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बनाएं जी का, सपोज यूनिकोड वैल्यू क्या है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये बनता है आई थिंक 72 के करीब बनता है, नहीं 72 तो बड़ी का होता है बेटा। हाँ, तो हमें इसकी भी जरूरत लिख लेते हैं, 97 98 99 100 101 102 103 ए बी सी डी ई एफ जी। तो यहाँ पे जी के लिए क्या हो रहा है देखिए 103, यहाँ पे 103, उसके बाद ये भी वैल्यू आएंगी, ओ की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू आएगी, फिर इसने क्या यूज किया लेस देन 103, इसकी दो वैल्यू। तो अब देखिए 103 लेस तो नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता लेस देन और इक्वल टू तो ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि ये क्या है कंपेयर क्या करता है, हर एक वैल्यू को हर एक वैल्यू से कंपेयर किया जाता है यहाँ पे। क्लियर? सो जस्ट मिनट, एक मिनट बच्चा। हमारी क्लास लग यार, जाओ आलू बस पढ़ रहे। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये, तो ये क्या करते हैं बेटा, अगर आपको यूनिकोड वैल्यू इनकी पता होंगी, जैसे कैपिटल ए की क्या है 65, तो यहाँ पे देखिए एक ही एग्जांपल में क्लियर कर देता हूँ, जी एफ, तो यहाँ पे अगर लिखा एफ लेस देन जी, तो ये फॉल्स है बेटा, क्योंकि कैपिटल जी पहला अक्षर और स्मॉल जी क्या है पहला अक्षर। तो स्मॉल जी का जो अस्काई वैल्यू है वो क्या है 103 है, और वो लेस देन नहीं है किससे 60 या 70 72 के करीब आएगा कैपिटल जी का, गॉड की कैपिटल जी का। ठीक है, तो ये 103 102 से छोटा तो नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, तो एक एक अक्षर को वन बाय वन कंपेयर होगा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, जो बाय इंडेक्सिंग कहते हैं हम। ठीक है, तो इसको एक बार चार्ट को देख लेना, ध्यान से देखना इस चार्ट को, सारा क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना पता लगा तो क्लास में पूछ लेना, यहाँ पे भी एक चार्ट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, सेम ही लिस्ट में ये सारा कुछ होता है बेटा, लिस्ट में भी सेम ऐसे वन बाय वन वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। अगर दो लिस्ट है तो पहली का पहली के साथ, दूसरी का दूसरी के साथ कंपैरिजन होता है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है एक आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, जब दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पे स्टोर कर रहे हैं अपनी वैल्यू को, मतलब कि दो वेरिएबल सेम वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं, तो वो क्या है, वहां पे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करता हूँ, जस्ट अ मिनट।
तो यहाँ पे देखते हैं मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल 56 एंड b इक्वल 55, a इज b। तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि a की आईडी क्या है, आईडी ऑफ a क्या है, ये है, और आईडी ऑफ b क्या है, अलग है। दोनों की आईडी अलग अलग है। मैं एक सी बनाता हूँ, सी इक्वल 55, a इज b, सॉरी सी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, a इज, सॉरी, हाँ हमारे हमें b के साथ कंपेयर करना है, b इज c। तो यहाँ पे ट्रू आया देखो, क्योंकि b ने भी 55 कंटेन किया और उसकी भी मेमोरी एड्रेस सेम है और c का भी मेमोरी एड्रेस सेम है। दोनों का मेमोरी एड्रेस आईडी ऑफ b एंड आईडी ऑफ c बोथ आर सेम। तो यहाँ पे इज ऑपरेटर क्या चेक करता है, क्या दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। तो अगर एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है तो वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर है बच्चा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और इज नॉट क्या करेगा, इज नॉट बिल्कुल इसका रिवर्स करेगा। अगर मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। क्लियर है। यहाँ पे इक्वल टू और आइडेंटिटी ऑपरेटर में जो भी इक्वल टू है तो चेक करने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर की क्या जरूरत पड़ेगी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर दोनों में क्या फर्क है, देखिए यहाँ पे कई दफा क्या है, हम जब कोई कैलकुलेशन करते हैं और इनपुट करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट किया है, S1 में क्या है, एबीसी है, और रन टाइम से अगर मैं एबीसी इनपुट करता हूँ तो ये कोई जरूरी है, जरूरी नहीं कि हमें क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया, S1 इक्वल 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 ऑपरेटर ने हमें इसका ये कौन है, ये बंद करो। पारस नाटक लग रहा है तेरे को हाँ? जब से इस परिवार में आई सब कुछ अच्छा ही अच्छा आ रहा है। पारस यहाँ पे बेटा मीटिंग खत्म होने का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार, हाँ, तो इनपुट जब हमने क्या किया, जब मैंने S1 को एबीसी असाइन किया और इनपुट किया एबीसी रन टाइम पे, तो इसने मेरे को इक्वल टू में ट्रू रिटर्न किया, लेकिन इस ने मेरे को फॉल्स रिटर्न किया। क्यों, क्योंकि जब हम इंटरनली इनपुट करते हैं तो उसका थोड़ा सा फर्क होता है। इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना, फिर भी अगर पता नहीं लगा तो मेरे से पूछ लेना लैब में, ठीक है। इसको पढ़ लेना, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉर, ये सारे यहाँ पे आते हैं। तो इनको हम क्या है कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, कल वाली क्लास में इसको फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। सो अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है बच्चा। किसी का कोई डाउट है। बेटा किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस क्लास। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है कि नहीं, रिप्लाई नो।